ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ बेटा अपनी यूनिट 4 ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕੈਮੀਕਲ ਕਿਨੈਟਿਕਸ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਕਿਨੈਟਿਕਸ ਕੀ ਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਫ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ बेटा which deals with the rate of chemical reaction and second one is the factors influencing the rate of reactions कल ही अपन ने डिस्कस किए सीगे factors influencing the chemical reaction and third point की सीगा पुत्र mechanism by which reaction proceeds मतलब reaction केड़े केड़े steps दे through हुंदी है mechanism by which reactions proceeds ठीक है ते तीन things ने क्या जेडी ਆਪਾਂ chemical kinetics unit ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्कस करनी ने बेटा rate ਆਪਾਂ डिस्कस कर चुके हैं rate ਦੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ अगर थोड़ा ਜਿਹਾ recap ਕਰਵਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ reaction ਦੇ rate ਨੂੰ express ਕਰਨ ਦੇ total 4 methods ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ methods ਸੀਗੇ ਰਾਜੇ first one is the average rate second one is the instantaneous rate and third one is the law of mass action and fourth one is the fourth ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬੇਟਾ rate law expression ठीक है जी होप सो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਥਡ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਸਮਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫੈਕਟਰਸ ਇਨਫਲੂਐਂਸਿੰਗ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਫੈਕਟਰਸ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਬਾਈਨਡ ਫਾਰਮ ਚ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਕਿ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਟਰਮਸ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿਹਦਾ ਪੜਿਆ ਸੀ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ rate of reaction and rate constant ਦਾ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨਿਟਸ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਯੂਨਿਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ ਮੋਲ ਪਰ ਲੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਰੇਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦੀਆਂ ਯੂਨਿਟਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰੇਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦੀਆਂ ਯੂਨਿਟਸ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪਨ ਆਰਡਰ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਜੇ ਆ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਫੁੱਲ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟਾ that is the order of reaction ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ by knowing the order of reaction ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ what is the order ठीक है तो देखो बेटा what is the order of chemical reaction ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰੇ ਮੈਥਡਸ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ ਆਫ ਮਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਰੇਟ ਲਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਨੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਿਖ ਦੇਾਂਗੇ ਲਾਈਕ ਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ A reactants, B reactants and C reactants it combines to form the products ਤੇ small a small b small c ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ ਬੇਟਾ ਸਟੋਕਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਵੀ ਲਿਖ ਦਨੀ ਆ ਸਟੋਕਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੋਕਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ + 3 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਟ ਫਾਰਮਸ ਦਾ 2NH3 ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 3 ਆ 2 ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ 1 ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ ਸਟੋਕਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਲ a b c ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ ਸਟੋਕਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰੇਟ ਲਿਖੀਏ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਰੇਟ ਲਿਖਣ ਦੇ ਟੋਟਲ 4 ਮੈਥਡ ਸੀ ਨਾ ਐਵਰੇਜ ਰੇਟ इंस्टैंटेनियस रेट लॉ ऑफ मास एक्शन ते लास्ट की सीगा रेट लॉ एक्सप्रेशन अगर मैं रेट लॉ एक्सप्रेशन या लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट लिखा क्योंकि ये प्रैक्टिकली हुंदा है वाला रेट ठीक है तो देखो जी रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन is directly proportional to the product of concentration of
रिएक्टेंट्स। ठीक है, पिछला लैक्चर तुहानूं याद होगा, अगर तुसीं फुल डिटेल दे विच उहनूं देखिया होया समझिया होया फिर ही तुहानूं नैक्सट टॉपिक समझ लगणगे। तो देखो, रेट ऑफ एनी कैमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब की हुंदा बेटा इत्थे मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, मतलब की होया कि अगर मैं किसी रिएक्शन की स्पीड नूं वधाउणा, ठीक है, तो इट मीनस मैनूं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी की करना पैना, इंक्रीज करना पैना। क्लीयर है जी? प्रोडक्ट तो रिएक्शन की स्पीड का कोई लेना देना नहीं हुंदा, सिर्फ रिएक्शन का जिहड़ा रेट हुंदा सिर्फ किहदे उत्ते डिपेंड करदा, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन दे उत्ते। क्लीयर है जी? अगर रिएक्टेंट्स दे नाल स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होण तां स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की बन जांदे ने इन्हां दी पावर्स। ठीक है, जे तां मैं हुण लॉ ऑफ मास एक्शन दे अकॉर्डिंग लिखा फिर तां पावर्स की हो जाणगीਆਂ सेम, ए पावर बी दी बी पावर ते सी दी सी पावर। अगर रेट ला एक्सप्रैशन दे अकॉर्डिंग लिखिए तो पावर्स की हो सकदियां ने, सेम भी हो सकदियां ने ते डिफरेंट भी हो सकदियां ने। तो देखो राजी, इत्थे मैं पावर्स पी क्यू आर पातियां। ठीक है, हुण पी दी जिहड़ी पावर आ गई, ठीक है, एदी वैल्यू ए हो भी सकदी है ते नहीं भी हो सकदी। ठीक है, क्यू बी हो भी सकदा ते नहीं भी हो सकदा ते आर सी हो भी सकदा नहीं भी हो सकदा। इहदे लई पहला तुहानूं जिहड़ा पिछला लैक्चर ओ चंगी तरह तुहानूं समझ आउणा चाहीदा। ठीक है, मतलब ओहदी पूरी क्लैरिटी पूरा माइंड दे विच फिट होना चाहीदा। क्लीयर है बेटा? तो देखो राजी, हुण समझो ध्यान नाल इस अपने कोल की हो रहा कि ए बी, उस तो बाद आप इन्हां दा की कर देंगे, प्लस करांगे पी प्लस क्यू प्लस आर। ठीक है, अगर आप इन्हां दा सम कर दिए, ठीक है, सम करके अपने कोल कोई भी वैल्यू आ गई एन। ठीक है, सम करके क्या आ गई, कोई भी वैल्यू एन आ गई। ठीक है, तो हुण अगर इन्हां सारियां दा सम करके एन दी वैल्यू 1 आउंदी आ, ठीक है, तो एन आपां नूं एन दी वैल्यू की आंदी है जां फिर 2 आंदी है, एन दी वैल्यू की आंदी है जां फिर 3 आंदी है। तो एन आपां नूं की रिप्रेजेंट कर रहा है, एन इज द order of reaction। n की है बेटा, n is the order of reaction। now what is n? n is the order of reaction। okay students, now what is the n? n is the order of reaction। okay students, तो देखो जी हुण n, अगर n दी वैल्यू 1 आ तो आपां की कहांगे, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। n दी वैल्यू 1 आ तो इहनूं आपां की कहांगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर n दी वैल्यू 2 है तो आप की कहांगे, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अगर n दी वैल्यू 3 होनी है तो इसनों आप की कहांगे, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर? तो डिपेंड करता है एन दी वैल्यू ते उहदे अकॉर्डिंग ही अपने कोल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब उहदे नाल ही आपां डिफरेंट ऑर्डर दी रिएक्शंस नूं कैटेगराइज कर सकते हैं। हुण ऑर्डर हुंदा की है? नाउ व्हाट इज द ऑर्डर? तो ऑर्डर की है, अगर अजे देखो ऑर्डर इट इज द सम, किहड़ियां दा सम है, पावर्स दा। इट इज द सम ऑफ पावर्स। किहड़ियां पावर्स दा सम हैगा? इट इज द सम ऑफ पावर्स इन टर्म्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। हुण ये रिएक्टेंट आ ए बी सी, ए स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब की हुंदा राजे कंसंट्रेशन। ठीक है, इन्हां दी कंसंट्रेशन, तो स्क्वायर ब्रैकेट्स दी जिहड़ी कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन आ इन्हां दी पावर्स दा जिहड़ा सम हुंदा ओहनूं आपां की कहांगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जे मैं तुहानूं इत्थे ऑर्डर दी डेफिनेशन लिखावां तो ऑर्डर की हुंदागा, इट इज द सम ऑफ पावर्स। हुण ध्यान नाल समझो राजे, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? इट इज द सम ऑफ, इट इज द सम ऑफ powers। it is the sum of powers। sum the means plus। ठीक है, it is the sum of powers किदे according to which the concentration, to which the concentration, to which the concentration terms, to which the concentration terms are raised, to which the concentration terms are raised in rate law expression, in rate law expression, in rate law expression। हम ध्यान नाल समझो बेटा, कला कला वर्ड इत्थे। तो देखो ऑर्डर की हुंदा जी, इट इज द सम ऑफ पावर्स। पावर्स दा की हो गया सम, टू विच द कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड।
किन्ना दी कंसंट्रेशन दी जिहड़ियां टर्म्स ने गया मतलब जिहड़ियां इन्हां दी कंसंट्रेशन दे टर्म्स ने जिहड़ियां पावर्स बणियां होईयां ने मीनस किहदे अकॉर्डिंग रेट ला एक्सप्रैशन दे अकॉर्डिंग हुण याद रखो इत्थे बेटा लॉ ऑफ मास एक्शन भी हुंदा एवरेज रेट भी हुंदा इंस्टैंटेनियस रेट हुंदा बट आपां जिहड़ा ऑर्डर कैलकुलेट करना वो रेट ला एक्सप्रैशन दे अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना की दस्सिया सी मैं तुहानूं रेट ला एक्सप्रैशन दे विच कि जिन्ना स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हुंदा उन्नियां पावर्स सेम हो भी सकदियां ने ते पावर्स सेम नहीं भी हो सकदियां क्लीयर आ तां आपां ये चीज़ां प्रैक्टिकली फाइंड आउट करनियां तां अल्टीमेटली आपां की कह सकदे आ कि जिहड़े किसी भी रिएक्शन दा अगर तुसीं ऑर्डर नूं कैलकुलेट करना बेटा तां ओह प्रैक्टिकली वैल्यू आ मतलब एक्सपैरीमेंटली आपां कैलकुलेट कर सकदे आ थ्योरेटिकली इस चीज़ दा कोई प्रूफ नहीं हैगा ठीक है जी तो आप एक्सपैरीमेंटली किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि ये किहड़े लॉ के अकॉर्डिंग है रेट ला एक्सप्रैशन के अकॉर्डिंग तो रेट ला एक्सप्रैशन दे विच पावर्स का सम कितना आ रहा ठीक है जब पावर्स कितनी आ रही ने सेम आ रही ने स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दे जां डिफरेंट आ रही ने वो आप सब कुछ एक्सपैरीमेंटली ही कैलकुलेट कर सकते हैं ओके बेटा तो ये सीगा अपने कोल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हुण आपां इन्हां दी वन बाय वन एग्जांपल करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सैकंड ऑर्डर रिएक्शन थर्ड ऑर्डर रिएक्शन ठीक है जी तो देखो बेटा सब तो पहला आप एग्जांपल करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ठीक है कि एग्जांपल करते पुत्र फर्स्ट वन इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शंस फर्स्ट ऑफ ऑल सब तो पहला एग्जांपल कर देंगे आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कि एग्जांपल करते हैं बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे विच देखो फर्स्ट एग्जांपल मैं तुहानूं दसदी हां डिकंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड N2O5 नूं अगर तुसीं हीट करो तो डिकंपोज होके की बना लैंदा 2NO2 प्लस ऑक्सीजन ठीक है जी नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड नूं अगर आप डिकंपोज करिए बेटा देन इट फॉर्म्स द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन हुण ये रिएक्शन दे जे आपां ने रेट लिखना होवे तां रेट ऑफ रिएक्शन की हुंदा रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुंदा बेटा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इत्थे मेरे कोल इक्को ही रिएक्टेंट आ तां रिएक्टेंट किहड़ा N2O5 दे अपन ने की कर ली कंसंट्रेशन कर ली हुण इहदा स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना इत्थे 1 ठीक है बट मैं इत्थे स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की पाउणा बेटा A पाउणा ठीक है क्योंकि जिहड़ी वैल्यू हैगी ठीक है मैं तुहानूं दस्सिया भी स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दी वैल्यू सेम हो भी सकदी आ ਜਾਂ फिर सेम नहीं भी हो सकती ठीक है तो देखो बेटा इत्थे जिहड़ी अपने कोल पावर A मैं A पा लिया ठीक है तो हुण A दी वैल्यू 1 भी हो सकती है तो A दी वैल्यू 1 नहीं भी हो सकती बट जो प्रैक्टिकली फाइंड आउट किया गया तो A दी वैल्यू कितनी सी बेटा अपने कोले 1 सी ठीक है अगर A दी वैल्यू 1 आ तो मैं इत्थे किवें लिखूंगी रेट इज द रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द K N2O5 ते दी पावर कितनी है 1 तो इट मीन्स हुण पावर सम ऑफ पावर्स की हुंदा पावर इक्को ही है बेटा ठीक है तो सम ऑफ पावर्स कितना 1 तो इट मीन्स ये कि आ गया अपने कोले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की आ गई पुत्र फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ठीक है तो ऐदा ही सेम तुसी मैनूं दी एक होर एग्जांपल दसनी आ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दी ठीक है किहड़ी है बेटा तुसी कमेंट बॉक्स दे विच लिख के भी मैनूं दस सकदे हो जां फिर तुसी मैनूं पर्सनली मैसेज करके भी रिप्लाई कर सकदे हो ओके दैन उस तो बाद हुण आपां सैकंड एग्जांपल करदे हां सैकंड ऑर्डर रिएक्शन तो इत्थे तुहानूं घट्टो घट्ट दो एग्जांपल्स लर्न होणियां चाहीदियां ने ठीक है मैं तुहानूं एक एग्जांपल दस रही हूं तो एक एग्जांपल तुसीं खुद लिखनी आ ठीक है तो देखो बेटा नेक्स्ट सैकंड ऑर्डर रिएक्शन हुण सैकंड ऑर्डर रिएक्शन दे विच आपां एग्जांपल ले लैंदे आ लाइक H2 प्लस I2 हाइड्रोजन ते आयोडीन आपां कंबाइन करदे आ इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडाइड देन इट फॉर्म्स द 2HI की बन गया अपने कोले हाइड्रोजन आयोडाइड अगर ये रिएक्शन आपां रेट लिखिए रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द H2 दी कंसंट्रेशन ते I2 दी कंसंट्रेशन ठीक है हुण इस दे अगे भी स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना 1 इस दे अगे भी स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना 1 तो इसकी पावर भी कितनी आ जानी है 1 इसकी पावर भी कितनी आ जानी है 1 ठीक है फिर मैं फिर दोबारा वही गल कह रही हां कि हुण ये पावर्स सेम हो भी सकदे ने नहीं भी हो सकदियां ठीक है सेम मैंने सेम ही लिखे ने तो इट मींस प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट कीतियां गईयां ने इसदी पावर्स कितनियां ने ठीक है जी तो सम ऑफ पावर्स हुण इत्थे प्रोपोर्शनैलिटी हटा के बेटा तुसी कांस्टेंट K लगा के भी
लिख सकते हो रेट नूं, ठीक है। तो मैं इत्थे लिख ही दिंदी हां, द रेट इज इक्वल टू द के H2 ਦੀ concentration 1 ਤੇ I2 ਦੀ concentration 1, ठीक है। तो हुण आपां सम करिए पावर्स दा, पावर्स की ने अपने कोले H दी पावर 1 ते I2 दी पावर 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया बेटा 2, तो इट मींस किहड़े ऑर्डर दी रिएक्शन होगी अपने कोले ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ओके। किहड़ी रिएक्शन होगी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ऐदा ही सेम तुसी नेक्स्ट रिएक्शन भी लिख सकते हो, ਇਹਦੀ एग्जांपल हैगी कि नेक्स्ट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दी डिकम्पोजिशन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दी डिकम्पोजिशन इट फॉर्म्स द नाइट्रिक ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। एग्जांपल तुसी खुद दसनी है, मैं तुहानू थ्योरेटिकल एग्जांपल दसी है डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इट फॉर्म्स द नाइट्रिक ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन ते रिएक्शन दा रेट कितना होना, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल करदे बेटा आपां थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन दे विच की होना नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन इट कंबाइंस टू फॉर्म द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन इट फॉर्म्स द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। हुण अगर पर रिएक्शन दा रेट लिखिए तो रेट ऑफ रिएक्शन किहदे कोल होगा, दैट इज इक्वल टू द के नाइट्रिक ऑक्साइड, इहदी पावर कितनी आ गई बेटा 2 प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, नाल ऑक्सीजन आ तां ऑक्सीजन की पावर कितनी आ गई 1, ठीक है। तो अपने को रेट ऑफ रिएक्शन की बन के होना रेट इज इक्वल टू सॉरी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बन के होना बेटा इत्थे अपने को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दैट इज द n किस इक्वल होगा बेटा 2 प्लस 1 मींस थर्ड। तो अपने को केड़े ऑर्डर की रिएक्शन होगी थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन, ठीक है। तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की एक एग्जांपल मैं तुहानू दस दी। नैक्सट एग्जांपल तुहानू नोट्स जो सेंड किए जाएंगे, ठीक है जी, नोट्स दे विच भी नैक्सट एग्जांपल लिखी हुई है, तो एक बार पहला तुसी खुद भी ट्राई करके देखना। नाइट्रिक ऑक्साइड 2 मोल्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस क्लोरीन नू कंबाइन करके नाइट्रोसाइल क्लोराइड बनना, ठीक है। लिख के देखो रिएक्शन नू। नैक्सट हुण देखो ध्यान नाल समझो मेरी गल, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन सैकेंड ते थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन की है, ठीक है। इहदियां जिहड़ी एग्जांपल्स ने तुहानू लर्न करनी पैणगियां क्योंकि ये सारियां एक्सपैरीमेंटली ने बेटा, ठीक है। इत्थे तुसीं कोई भी एग्जांपल अपने वल्लों नहीं लिख सकते हैगे कि इहनू प्लस कीता जी 2 या 3 आ गया, क्योंकि एक्सपैरीमेंटली ने हैगियां सारियां एग्जांपल्स, तो तुहानू रिएक्शनस याद रखनियां पैणगियां। हुण इह तां आपां ओह सारी एग्जांपल्स कीतियां सी जिन्हां दे विच जिन्ना स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आ उन्नी ही पावर आ गई सेम, ठीक है। बाय चांस एक्सपैरीमेंटली पावर की आ गई उन्हां दी सेम आ गई, ठीक है। हुण आपां कुछ ऐदां दी एग्जांपल्स करदे हां कि जिन्ना स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होना पावर्स उन्नी नहीं रहनी, ठीक है। तो उहदे वास्ते अपने कोले 2 होर एक्स्ट्रा ऑर्डर दी एग्जांपल्स ने गया, ठीक है। तो किहड़े 2 होर एक्स्ट्रा ऑर्डर एग्जांपल ने लाइक फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक है, जिन्हां दे विच पावर जो तुसीं एक्सपैक्ट करदे हो वो सेम नहीं आउंदी, ठीक है। फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। तो हम फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन दे विच देखो बेटा, फ्रैक्शनल ऑर्डर दी पहला आपां एग्जांपल दसदी मैं तुहानू, लाइक से एग्जांपल डिकम्पोजिशन ऑफ एस्टल्डिहाइड, जानदे हो ना एस्टल्डिहाइड जां फिर इहनू इथेनॉल अल्डिहाइड है ना, ये इथेनॉल भी कह देने ये उपर डिकम्पोज करते हैं बेटा, डिकम्पोज होके की बन जाना CH3 सीगा तो एक H कंबाइन होकर CH4 प्लस C ते ओ रह गया कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो जी हुण तुसीं रिएक्शन का रेट लिखोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द K, तो इत्थे अपने कोल CH3CHO, ठीक है। इसकी पावर की ले ली A। हुण एक्सपैरीमेंटली फाइंड आउट किया, ठीक है, कि A दी पावर 1 हो भी सकती है, यही दस्या हुआ है ना तुहानू मैं हमेशा स्टार्टिंग तो कहती आ रही हूं कि A दी पावर 1 नहीं भी हो सकती, बट जो एक्सपैरीमेंटली फाइंड आउट किया गया बेटा तो A दी पावर इज नॉट इक्वल टू की आई 1 आई, ठीक है। तो इसकी पावर कितनी आई बेटा, A दी पावर इज इक्वल टू द 1.5, तो A कितना आ गया अपने को 1.5 और आप कितना कह सकते हैं 3/2, तो मीनस इत्थे ऑर्डर किस च आ गया बेटा अपने को फ्रैक्शंस दे विच आ गया, ठीक है। तो अपने को केड़े ऑर्डर की रिएक्शन होगी पुत्र, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। इत्थे तुहानू एग्जांपल लर्न करनी पैनी है कि एस्टल्डिहाइड नू जदों आपां डिकम्पोज करदे हां तो ये केड़े ऑर्डर की रिएक्शन आ, फ्रैक्शनल ऑर्डर की रिएक्शन। इसकी पावर 1 नहीं आनी हैगी तो अपने को फ्रैक्शनल ऑर्डर की रिएक्शन बन के आ गई, ठीक है। एक एग्जांपल करवाती बेटा, उस तो बाद फ्रैक्शनल ऑर्डर की फिर मैं हुण तुहानू सैकेंड एग्जांपल दसदी हां फ्रैक्शनल ऑर्डर की। नैक्सट एग्जांपल देखो, सैकेंड एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा लाइक से एग्जांपल अपने को किया H2
plus Br2, H2 plus Br2, it gives the 2HBr, it gives the 2HBr। ਹੁਣ देखो अगर ਆਪਾਂ रिएक्शन ਦਾ रेट किस को लिखे K then H2 ਦੀ concentration ਤੇ Br2 ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੁਣ टिप्स से हो ही गया होना कि रिएक्शन का रेट किद्दां लिखना हुंदा, सिर्फ रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन लिखनी हुंदी है कि बेटा ते सेंटर दे विच प्लस नहीं पाउणा। कई बच्चे बहुत कन्फ्यूज हुंदे ने कि इत्थे प्लस आ जी तां इत्थे भी प्लस पा दो। बहुत ध्यान नाल मैं तुहानूं पहले दस रही मिस्टेक तुसीं कित्थे करोगे, ठीक है, वो चीज़ नहीं करनी बेटा। तो देखो इत्थे तुहानूं H दी पावर 1 आ ते B दी पावर Br2 दी भी की हैगी अपने कोल स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 ते H2 दा भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 आ। मैं सेम पावर नहीं लिखूंगी बेटा, मैं इत्थे A ते B लिखना, ठीक है। तो हुण A दी पावर 1 भी हो सकती है या फिर A दी वैल्यू 1 नहीं भी हो सकती, V दी वैल्यू 1 हो सकती है ते B दी वैल्यू 1 नहीं भी हो सकती, ठीक है। मीनस इत्थे अपने कोले ऑर्डर 1 + 1 2 भी हो सकता, ठीक है, या फिर ऑर्डर 1 प्लस या फिर अपने कोले ऑर्डर, ठीक है, अगर नॉट इक्वल टू आ रहेगा तो 2 दे इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम देखो जो एक्सपैरीमेंटली फाइंड आउट किया गया, वैसे थोड़ा देखने में सैकेंड ऑर्डर की रिएक्शन लग रही है, बट जो एक्सपैरीमेंटली फाइंड आउट किया गया बेटा तो इत्थे अपने कोले जिहड़ी K सीगी, ठीक है, हाइड्रोजन रेट ऑफ रिएक्शन, जिहड़ी हाइड्रोजन की पावर सीगी उत्थे तां A दी वैल्यू है जिहड़ी ओह 1 ही आई, ठीक है। बट जिहड़ी B दी वैल्यू सीगी बेटा Br2 ब्रोमीन दे विच B दी वैल्यू सीगी ओह कितनी आई 0.5, कितनी आई बेटा 0.5। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना बनिया 1 + 0.5 मीनस कितना बने अपने कोले 1.5। तो ये भी किहड़े ऑर्डर की रिएक्शन आ गई, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो एक्सपैरीमेंटली तुसी दो एग्जांपल याद रखने ने फ्रैक्शनल ऑर्डर दियां, एक मैं पहले दसी सी एसिटाल्डिहाइड ते एक आ वाली है कि बेटा अपने कोले हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन दी, ठीक है। अपने को फ्रैक्शनल ऑर्डर हो गया, उस तो बाद अपन नेक्स्ट होर एग्जांपल कर देंगे बेटा जिथे अपने को वैल्यू सेम नहीं रहती, दैट इज कॉल्ड द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मोस्टली इस क्वेश्चन पूछा जाता जीरो ऑर्डर रिएक्शन के उत्ते। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के देखो रजे हुण जीरो ऑर्डर रिएक्शन हुंदी की हैगी, पहले मैं एग्जांपल दसदी तुहानूं फिर इहदी क्लैरिटी करवानी है कंसैप्ट दी। लाइक अपने को अमोनीया, ठीक है, NH3 जानते हो ना सारे, NH3 अमोनीया जिहदी की पिरामिडल शेप हुंदी है ना। तो NH3 अमोनीया बेटा इन्हों अपने की करना डीकंपोज करना, डीकंपोज मतलब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ नाइट्रोजन ਤੇ हाइड्रोजन ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ करना, ठीक है। तो ਹੁਣ ਇਹ ਅਮੋਨੀਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ नाइट्रोजन ਤੇ हाइड्रोजन ਦੇ ਵਿੱਚ डीकंपोज नहीं ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ मैं ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ कैटलिस्ट नहीं पाती, ठीक है। जिवें ही इस कैटलिस्ट पाता प्लैटिनम का ते टैंपरेचर रखता 1130 कैलविन, तो नाल दी नाल अमोनीया डीकंपोज होना शुरू हो जाना नाइट्रोजन ते हाइड्रोजन दे विच। मीनस हुण ध्यान नाल समझो कि इत्थे मैं चाहे अमोनीया की कंसनट्रेशन वध लै ला चाहे अमोनीया की कंसनट्रेशन घट लै ला, मीनस ये रिएक्शन दे विच आपां रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन भावें वधा दईए भावें घटा दईए पर रिएक्शन की स्पीड के उत्ते कोई असर नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि जदों तक कैटलिस्ट नहीं पै रहा उदों तक रिएक्शन नहीं हो रही, ठीक है। आपां इंटरनल मैं तुहानूं देखो इंटरनल मैं तुहानूं की दसदी हुंदी आ कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जे मैं रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन वधा दा जी तो रेट वध जाना, रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन घटा दा, ठीक है, तो रेट घट जाना, ठीक है। यही चीज सी ना भी रिएक्शन दा जिहड़ी स्पीड आ गई वो रिएक्टेंट्स दी अमाउंट दे उत्ते डिपेंड करदी है, अमाउंट वध लै लो स्पीड वध जाऊगी, अमाउंट घट लै लो स्पीड घट जाऊगी, ठीक है। हुण इह केस दे विच देखो हुण भावें मैं अमोनीया दी अमाउंट वध लवां चाहे मैं घट लवां, ठीक है, तो ओहदे नाल जिहड़ी रिएक्शन दी स्पीड उत्ते कोई असर नहीं पै रहा, क्यों, क्योंकि रिएक्शन कैटलिस्ट पाउण दे नाल हो रही है। तो अमोनीया दी अमाउंट वधावां जां घटावां, ठीक है, तो ओहदे नाल रिएक्शन दी स्पीड ते कोई असर नहीं हो रहा हैगा, तो इट मीनस रिएक्शन की हुई जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन मतलब द रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज दैट रिएक्शन विच डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। जे मैं हुण रिएक्शन दा रेट लिखना चाहां तो रेट इज इक्वल टू K NH3 तो यदि कंसंट्रेशन की पावर की लेनी है 0,
ठीक है। तो जीरो मतलब अगर आप कंसंट्रेशन की पावर जीरो लै लैने आ तो यह की हो जाता कॉन्स्टेंट के इक्वल मतलब 1 के इक्वल हो जाता। ठीक है। तो हुण चाहे मैं इनू वधाई जावां घटाई जावां रेट दे उत्ते कोई इफेक्ट नहीं पैना। तो बेटा इत्थे अपने कोले इहो जिहियां रिएक्शनस जीरो ऑर्डर दी रिएक्शनस हुंदियां ने जिहड़े कैटालिस्ट पाउण दे नाल हुंदियां ने। ठीक है। जिन्हां दे विच रिएक्टेंट दी कंसंट्रेशन दा कोई इफेक्ट नहीं हुंदा रिएक्शन दे रेट दे उपर। तो मैं एक और वर्डिंग भी लिख दनी आ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज दैट रिएक्शन which does not depends upon the concentration of reactants, which does not depends upon the concentration of reactants। ठीक है। मतलब जी रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन से डिपेंड नहीं करदियां। ठीक है। भावें हुण आपां रिएक्टेंट की अमाउंट वध लै लईए चाहे आपां घट लै लईए। ठीक है। कई बार ना बेटा इत्थे ना कंसैप्चुअल क्वेश्चन बन के आउंदा। ठीक है। क्वेश्चन की पूछा जाता। ठीक है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डज नॉट इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। कहंदे भी ओह ऑर्डर दी रिएक्शन दसो। ठीक है। जिहदे नाल रिएक्टेंट दी कंसंट्रेशन दा रिएक्शन दे रेट उत्ते कोई असर नहीं हुंदा। तो किहड़े ऑर्डर दी रिएक्शन हुंदी आ? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है। जां फिर तुहानूं पूछा जाऊगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन दी एग्जांपल दो। ठीक है जी। क्लीयर है। जब पूछा होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शंस किहड़ियां हुंदियां ने। ठीक है बेटा। तो एक एग्जांपल दस दी तुहानूं अमोनिया दी डिकंपोजिशन यह कैटालिस्ट पाउण दे नाल ही हुंदी आ। ओके। सैकंड एग्जांपल दस दी तुहानूं जीरो ऑर्डर रिएक्शन दी। तो सैकंड एग्जांपल की है कि बेटा अपने कोल हाइड्रोजन आयोडाइड इहदी डिकंपोजिशन। हुण हाइड्रोजन आयोडाइड नूं अगर आपां हाइड्रोजन प्लस आयोडीन दे विच डिकंपोज करना ते उन्ना टाइम डिकंपोज नहीं हुंदा हैगा बेटा जिन्ना टाइम तक आपां इस दे विच गोल्ड दा कैटालिस्ट नहीं पांदे। ठीक है। जिन्ना टाइम तक आपां इस दे विच गोल्ड दा कैटालिस्ट नहीं पाउंदे ते रिएक्शन रिवर्सिबल हुंदी है ये। क्लीयर। तो हुण देखो रिएक्शन दा रेट लिखी आपां तो चाहे मैं HI दी कंसंट्रेशन वधावां चाहे HI दी कंसंट्रेशन घटावां उहदे नाल रिएक्शन दे रेट उत्ते कोई असर नहीं होण लग्या। तुहानूं देखण नूं कोई लगूगा कि स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इत्थे 2 आ ते इहदी पावर 2 आ जूगी। लो जी हो गई सैकंड ऑर्डर दी रिएक्शन। बट एक्चुअली ऐदा नहीं हुंदा। मैं तुहानूं पहला ही दस चुकी हां कि इहदी पावर A लिखांगे आपां। हुण A दी पावर 2 हो भी सकदी है ते A दी पावर 2 नहीं भी हो सकदी। बट जदों प्रैक्टिकली फाइंड आउट किया गया तो A दी पावर नॉट इक्वल टू 2 आई क्योंकि रिएक्शन आ गई जिहड़ी वो कैटालिस्ट पाउण नाल हो रही है। ठीक है। जद तक आपां कैटालिस्ट नहीं पाउंदे भावें इहदी अमाउंट नूं वधाई चलो इहदी अमाउंट नूं घटाई चलो। ठीक है। कैटालिस्ट तो बिना रिएक्शन नहीं होनी हैगी। क्लीयर है। तो ये सी अपने कोल किहड़ी जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। ओके स्टूडेंट्स। उस तो बाद आपां नैक्सट कर देंगे हुण इहदियां यूनिट्स। बेसिकली बेटा देखो मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि जे आपां रेट कांस्टेंट दी यूनिट्स फाइंड आउट करनियां होण तां किहदे उत्ते डिपेंड करदियां ने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उत्ते। तो आपां नैक्सट टॉपिक करन स्टार्ट करन जा रहे हैं जी यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। किहदियां यूनिट्स बेटा? यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट दी यूनिट्स की होणगे अपने कोल लाइक जिवें स्मॉल के आ गया। ठीक है। इहदे आपां यूनिट्स फाइंड आउट करनियां ने तो अपने कोल हर एक ऑर्डर दी रिएक्शन लई अलग-अलग यूनिट्स होणगियां। इहदी कोई फिक्स यूनिट्स नहीं हैगियां। ठीक है। हुण जिवें देखो एग्जांपल लैणे आगे आपां यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हुण जीरो ऑर्डर रिएक्शन दे लई आपां की लै रहे हैं बेटा? यूनिट्स लै रहे हैं। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन दे लई देखो यूनिट्स किदां होणगे इत्थे अपने कोल सिंपल बेसिकली रहे। देखो पहला आपां कोई भी एग्जांपल लैणे हैगे। एग्जांपल सपोज अपने कोले A कन्वर्ट्स टू द B। ठीक है। तो मैं रिएक्शन दा रेट लिखा रेट इज इक्वल टू द की आ जाऊगा इत्थे K A दी पावर की आ गई बेटा इत्थे नॉट मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है। तो A दी पावर अगर कंसंट्रेशन दी टर्म जीरो आ जाए तो हमेशा किस इक्वल हो जाता? 1 दे इक्वल हो जाता। ठीक है। तो इत्थे अपने कोल की आ जाना रेट इज इक्वल टू द की आ जाना बेटा K क्योंकि A नॉट दी पावर ते की होगी 1 होगी। तो इत्थे अपने कोल रेट दी यूनिट्स जिहड़ियां आणगियां तो रेट दी यूनिट्स की हुंदियां ने मोल पर लीटर पर सेकंड। ओही यूनिट्स की होणगे बेटा अपने कोल रेट कांस्टेंट दी यूनिट्स। ठीक है। तो ये सी अपने कोल जीरो ऑर्डर दियां। ठीक है। रिएक्शन दी यूनिट्स। नैक्सट उस तो बाद देखो हुण आपां की कर देंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यूनिट्स। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यूनिट्स फर्स्ट ऑर्डर। सैकेंड आपां करदे हां यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर। हुण फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे लई आपां सेम एग्जांपल। ठीक है। मतलब जनरल एग्जांपल A टू B तो रिएक्शन का रेट की लिखांगे रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द K। हुण आपां फर्स्ट ऑर्डर तां ही होगा जिहदी पावर 1 होनी है।
ठीक है। तो इतने अपने को रेट दी यूनिट्स की आ जाएगी मोल पर लीटर पर सैकेंड इज इक्वल टू के। कंसंट्रेशन दी यूनिट्स की आ जाएगी पुत्र अपने को मोल पर लीटर की आ जाएगी मोल पर लीटर। इतने आप कि वैल्यू फाइंड आउट करनी है के दी, तो अपने को की आ जाना बेटा ये मोल पर लीटर पर सैकेंड ते ए मोल पर लीटर इधर डिवाइड च आ जाना क्योंकि के ना मल्टीप्लाई च पिया, तो अपने को ये मोल पर लीटर नाल मोल पर लीटर कैंसल हो गया तो के दी यूनिट्स की रह गई पर सैकेंड। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे विच रेट कांस्टेंट दी यूनिट्स की होणगियां पर सैकेंड। ठीक है, कई बार जो आप न्यूमेरिकल्स करांगे तो न्यूमेरिकल्स दे विच जे रेट कांस्टेंट दी यूनिट्स पर सैकेंड लिखे तो इट मीनस वो फर्स्ट ऑर्डर दी रिएक्शन आ। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स दे विच नहीं दस्सिया जांदा भी फर्स्ट ऑर्डर है सैकेंड ऑर्डर है, तो तुसीं के दी यूनिट्स तो ही एक्सपैक्ट करना भी तुहाडे कोल किहड़े ऑर्डर दी रिएक्शन आ। ठीक है, नैक्सट आपां की कर देंगे फर्स्ट ऑर्डर तो बाद सैकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सैकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सैकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो हम देखो बेटा सैकेंड ऑर्डर रिएक्शन दे विच अपने कोल सिंपल एग्जांपल 2a तो b। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द के ए दी पावर कितनी आ जानी है पुत्र 2, ए दी पावर कितनी आ जानी है इत्थे अपने कोले 2 आ जानी है। तो रेट दी यूनिट्स की ने पुत्र मोल पर लीटर पर सैकेंड। ठीक है, के ते इत्थे कंसंट्रेशन दे यूनिट्स की रहणगियां मोल पर लीटर दी स्क्वायर। ठीक है, तो इत्थों तुसीं मैनूं के दी वैल्यू डिटेक्ट करके दसना भी दे यूनिट्स की आउणियां नहीं, इस ते डिवाइड च चला जाना कैंसल हो जाणगियां, तो अपने कोल यूनिट्स किहड़ियां बचणगियां सैकेंड ऑर्डर रिएक्शन दियां। ठीक है, तुसीं खुद ट्राई करके देखियो। ओके बेटा, ते अपने कोल ऐदां ही सेम तुसीं फर्स्ट सैकेंड थर्ड, ठीक है सैकेंड थर्ड ऑर्डर दी रिएक्शंस देखो। हुण आपां नैक्सट कर देंगे एग्जांपल थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस। नेक्स्ट की कर देंगे बेटा ਆਪਾਂ थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस, थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस। ਹੁਣ थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਣਾ 3a इट फॉर्म्स द b, the rate of reaction rate is equal to ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ ਬੇਟਾ k a ਦੀ ਪਾਵਰ 3। ठीक है, तो रेट ਦੀਆਂ यूनिट्स ਕੀ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ मोल पर लीटर पर सेकंड is equal to k a ਦੀਆਂ यूनिट्स ਕੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਬੇਟਾ मोल पर लीटर ਦੀ क्यूब। ओके, तो इत्थे अपने कोल की आ जाना मोल पर लीटर पर सैकेंड, देन उस तो बाद मोल पर लीटर इसकी की आ जानी बेटा क्यूब। ठीक है, इज इक्वल टू के। तो इस विच एक मोल पर लीटर तो कैंसल हो गया, तो अपने कोल की रह गया पुत्र पर सैकेंड रह गया, तो मोल पर लीटर दा स्क्वायर रह गया। ठीक है, तो इत्थे अपने कोल के दी यूनिट्स की आ जानी इनू आप उपर लैके जावांगे तो इनवर्स हो जाना। ठीक है जी, तो लीटर इनवर्स सीगे खत्म हो जाना बेटा, लीटर स्क्वायर रह जाना, मोल इनवर्स स्क्वायर ते पर सैकेंड। ये अपने को किसी यूनिट्स आ गया थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अगर तुम पहला सैकेंड ऑर्डर की ट्राई कर चुके हो फिर बहुत ईजी होंगे तुहाडे तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस दियां। क्लीयर स्टूडेंट्स, मीनस अगर अपने को कोई भी nth मोल तक हो 4 nth ऑर्डर 4 nth ऑर्डर, ठीक है कोई भी nth ऑर्डर तक नहीं गया तो आप nth ऑर्डर तक किवें लिख सकते हैं मोल पर लीटर 1 माइनस n की है अपने को किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर पर सैकेंड। तो इत्थे तुसीं मान लो सपोज तुसीं सैकेंड ऑर्डर का फाइंड आउट करना तो n की वैल्यू की पुट कर दोगे तुसीं 2 पुट कर दोगे। ठीक है, तो इत्थे अपने को मोल पर लीटर, ठीक है 1 माइनस 2 इज देन पर सैकेंड। तो देखो बेटा अपने को की बन के आ जाने ने यूनिट्स मोल पर लीटर, ठीक है देन उस तो बाद 1 माइनस 2 दी पावर कितनी आ गई -1। ठीक है जी, पर सैकेंड तो अपने को की बन जाना मोल -1 लीटर -1 कैंसल हो गया की रह जाना लीटर पर सैकेंड। तो अपने को किहड़े ऑर्डर दी आ गया सैकेंड ऑर्डर दी। ठीक है, फॉर्मूले दे विच तुसीं किसी भी फॉर्मूले विच फर्स्ट सैकेंड थर्ड ऑर्डर वैल्यूज पुट करो तो तुहाडे कोले यूनिट्स आ जाणगे। ठीक है, लीटर नूं तुसीं अगे भी लिख सकते हो जिवें आपां इस दे विच लिखिया। ठीक है, ऐदां भी लिख सकते हो तुसीं लीटर पर मोल पर सैकेंड। तो ये अपने को सैकेंड ऑर्डर वास्ते आ गया, ये अपने को थर्ड ऑर्डर लई ने। ओके स्टूडेंट्स, दैन उस तो बाद नैक्सट देखो बेटा कुछ अपने को गैसेज रिएक्शंस होंदियां ने। ठीक है, की होंदे ने बेटा गैसेज रिएक्शंस। तो गैसेज रिएक्शंस वास्ते तुसीं किसी भी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट किवें चेक कर सकते हो। ठीक है, फॉर गैसेज सोल्यूशंस। तो देखो कई स्टूडेंट्स के डाउट्स भी सीगे, कई स्टूडेंट्स ने पूछा सी कि आपां गैसेज सोल्यूशंस दे लई किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं
ਫॉर ਗੈਸਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਆ ਗਏ, ਸਪੋਜ਼ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਯੂਨਿਟਸ ਜਿੱਦਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਮੋਲ ਪਰ ਲੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ठीक है। ये अपने को केड़े ऑर्डर फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन लिए यूनिट्स आईया जीरो ऑर्डर रिएक्शन लिए। अगर यही जीरो ऑर्डर रिएक्शन मेरे को गैसेस सोल्यूशन दे विच हुंदी तां गैसेस सोल्यूशन दे विच आपां मोल पर लीटर ते नहीं यूज कर सकते क्योंकि ये कंसनट्रेशन लिए हुंदा, लिक्विड सोल्यूशंस लिए हुंदा। गैसेस सोल्यूशन लिए आपां की यूज करते हैं टर्म्स प्रैशर वालियां, ठीक है। लाइक किहड़ी प्रैशर वाली, जिवें एटमॉस्फेयर, ठीक है बेटा। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੋਲ ਪਰ ਲੀਟਰ ਆ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਮ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ। ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀਆਂ ਯੂਨਿਟਸ ਮੋਲ ਪਰ ਲੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਨੇ, ਮੋਲ ਪਰ ਲੀਟਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ, ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋ ਆਰਡਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਫॉर ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਫॉर ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨਿਟਸ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਯੂਨਿਟਸ ਕੀ ਸੀਗਾ ਬੇਟਾ, पर सैकेंड। तो इत्थे तो अपने को सिर्फ पर सैकेंड ने, तो फस्ट ऑर्डर रिएक्शन के गैस स्टेट दे विच भी ते अपने को लिक्विड सोल्यूशन दे विच भी की रहनियां ने, सेम ही रहनियां ने यूनिट्स, ठीक है। हुण मैं नैक्सट ट्राई करवानी है तुहानूं फॉर सैकेंड ऑर्डर रिएक्शन, फॉर सैकेंड ऑर्डर रिएक्शन। हुण सैकेंड ऑर्डर रिएक्शन दे पहले तो दसो कि सिंपल अपने को की आया सीगा आंसर, लीटर पर मोल पर सैकेंड, लीटर पर मोल पर सैकेंड आया सी ना। हुण मैं तुहानूं की दस्सिया कि अपने मोल पर लीटर लिए की लिखना है बेटा, एटमोसफीयर, ठीक है। मोल पर लीटर लिए एटमोसफीयर लिखना, ते इत्थे मेरे को इनवर्स आ गया, लीटर पर मोल आ गया, ते इत्थे आपां की लिखांगे, एटमोसफीयर पर सैकेंड, पर एटमोसफीयर पर सैकेंड आ जाएगा। ऐदा ही सेम बेटा फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन ली, ठीक है। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए की आ जाना बेटा, एटमोसफीयर स्क्वायर इनवर्स दैन पर सैकेंड, ठीक है। मतलब कोई भी फिर तुसी nth ऑर्डरली फाइंड आउट करनी होणगियां, nth ऑर्डरली तक की आ जाणगियां, एटमोसफीयर 1 माइनस n, 1 माइनस n दैन पर सैकेंड। तो किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन लिए तुसी ये कैलकुलेट कर सकते हो फॉर गैसेस सोल्यूशन के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सीगा बेटा अपने को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का टॉपिक फुल फ्लैश कंप्लीट होया। नैक्सट उस तो बाद आप फिर मॉलिक्यूलैरिटी कोलिजन थ्योरी करांगे, ठीक है। इन्हां दे नाल न्यूमेरिकल्स भी करांगे, कुछ डेरिवेशंस भी आणगियां। बट तुसी हुण तक जिन्ने भी लैक्चर हो गए ने वो तुहानूं सारे टिप्स से होने चाहिए ने, ठीक है। तां ही तुसी अगे वाले जिहड़े डेरिवेशंस ने चाहुंदे ते न्यूमेरिकल्स ने वो कर सकदे हो। हुण तक ये वीडियोस जिन्नियां भी ने बेटा केमिकल किनेटिक्स दी ऑन चंगी तरह नोट्स बना के फुल फ्लैश कंसैप्ट तुहाडे माइंड दे विच फिट होने चाहिए ने, तां ही तुसी आउण वाले नैक्सट कंसैप्ट दी क्लैरिटी कर सकदे हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू बेटा।